Hello, my dear students. Welcome to Social Studies class, 6th standard children. And today we are going to start with civics lesson number 5, Panchayati Raj. Before we start with the lesson, I want to just give you a reminder regarding our second term portion, what we have started, children. I hope that you are completing your notes, which are we are sending in the on the WhatsApp group. Till now, we have completed second term history lesson number 3, 4, geography lesson number 3, 4, and civics lesson number 3 and 4. Understood? So already I have completed with you in the second term portion. We have completed the sixth lesson. See, children, you have to complete your notes, whether we know that we are not meeting in the school now, but seriously I'm telling you, you please complete the notes of your first term and second term both, children. You have to keep your book completed, and I'm telling you to use the same book. जब तक आपकी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब आपकी बुक भर नहीं गई है, इफ़ योर बुक इज़ ओवर कंप्लीटेड राइटिंग, देन इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू बुक. बट आपकी अगर बुक नहीं भरी है तो आपको कंटिन्यू फर्स्ट टर्म के लेसन और सेकेंड टर्म के लेसन आपको इसी में करने, एक ही नोटबुक में. बाई चांस इफ योर बुक इज़ ओवर, देन यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू बुक. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वी हैव कंप्लीटेड lesson number 3, 4 of history, lesson number 3, 4 of geography, and lesson number 3, 4 of civics. Sorry, lesson number 3 was in first term, children, of civics. Civics lesson number 3 was in first term. So I have completed lesson number 4, that is democratic government, in second term. Again repeating my mistake, children, here. Civics lesson number 1 and 3 was of first term. Second term starts from lesson number 4, civics lesson number 4. Any confusion, you can ask me on the WhatsApp group, children. Okay, but listen to the video carefully. Read your textbook. Learn the hard words, children. This you are not doing it. You are not referring to video, means you are not listening to video. You are not even reading your textbook. I have come to know. You are not even reading the hard words. These three things are very important. Only learning is not important, children. You have to listen to the video, means explanation, read the textbook properly, learn the by heart your hard words, and if any difficulty of hard words, you can go through the dictionary, children. That I have been telling you since the starting of the 6th standard, children. Okay, so now today we begin with civics lesson number 5, the Panchayati Raj, children. Lesson is Panchayati Raj, and this means Panchayati Raj means of the rural administration. रूरल मतलब गांव में किस तरह से गवर्नमेंट चलती है, गांव में किस तरह से गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सब होता है, दैट विल बी लर्निंग इन दिस पंचायती राज. सो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न? द पंचायती राज, स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज, मतलब पंचायती राज को कैसे डिवाइड किया, लेवल्स क्या है उसके, एंड द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी पंचायती राज के दो पार्ट है. एक तो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब विलेज में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और जो 6th लेसन हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला कंटिन्यू हम लोग बाद में करेंगे. पहले 5th लेसन करेंगे, उसके बाद 6th लेसन करेंगे. तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है. मतलब ये 5th लेसन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन द विलेज, हाउ द गवर्नमेंट इज रन इन द विलेज. एंड इन द 6th लेसन विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स इन अ सिटी. सी चिल्ड्रन, रूरल मतलब विलेज, अर्बन मतलब सिटी. सो अर्बन वाला जो है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, विल बी डूइंग इन द 6th लेसन. सिविक्स की बात कर रही हूँ, 6th लेसन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 5th लेसन, पेज नंबर 242, children. So come on, page 242. So here one activity is given, children. In a family, when a brother and a sister fight, who solves their problems? Naturally, our parents. Okay, you know that. इन अ नेबरहुड व्हेन पीपल फाइट, हु सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम? सपोज आपके पड़ोस में कोई फाइटिंग कर रही है, तो कौन उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? सी, नाउअडेज वी कैन नॉट गेट इन टू अदर्स प्रॉब्लम्स, सो वी विल कंप्लेन टू अवर नियरेस्ट, व्हाट वी से, पुलिस स्टेशन, और नियरेस्ट कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, उसको बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर बहुत बड़ा. येस, फर्स्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व इनिशियली, बट लेटर ऑन
we will take help of our nearby what we say government servants or government service people. Okay children, so info babble it is given here. The term panchayat came from two words. Panch means five and ayat means assembly. So जब पांच जन कुछ गवर्नमेंट चलाते हैं, पहले के ज़माना ऐसा था, गांव में लोग पांच जन बैठ के सब फैसले सुनाते थे, एक पेड़ के नीचे बैठते थे और वहाँ पे मीटिंग चलती थी और लोग अपने प्रॉब्लम्स लाते थे गांव वाले और उनको सॉल्व कौन करता था? ये पांच लोग. इसलिए इस तब से वो वर्ड पड़ा है. अभी पांच लोग नहीं होते चिल्ड्रन. नाउ द नंबर कैन बी वेरिंग. इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट चिल्ड्रन. इट इज़ अप टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज कि कितने लोगों का वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगा. बट द वर्ड इज कैप्ट पंचायती राज. वो पुराना वर्ड है. जब अपना देश पहले एकदम जब आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिशर से भी पहले की बात मैं कर रही हूँ, तब ऐसे गांव में पांच लोग पूरे गांव के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. गांव के लोग सब आके सब डिस्कस करते थे. तो ये पांच मेन एल्डरली पीपल होते थे. 5 एल्डरली पीपल वर देयर हु यूज्ड टू कंट्रोल द विलेज, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज, डू द अरेंजमेंट्स इन द विलेज, पानी का अरेंजमेंट वगैरह वगैरह, दैट दे यूज्ड टू डू. सो तब से ये वर्ड पड़ गया है पंचायती राज. क्या पड़ा है? पंचायती राज. उससे नाम हुआ है पंचायती राज. सो कम ऑन वी स्टार्ट विद द लेसन नाउ. द पंचायती राज. आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि लेसन किसके बारे में है. इट इज़ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कैसे गांव में चलती है उसके बारे में है. सो विल स्टार्ट विद द लेसन. सी what I have explained you is written here. In earlier times, 5 elders of the village acknowledged मतलब उनको नियुक्त करते थे. पूरे गांव के लोग उनको बोलते थे नहीं नहीं आप बड़े 5 लोग हो, आप ही ये सब काम करो. Acknowledged by the community formed the panchayat to settle all types of disputes of the villagers and their verdict. मतलब उन लोग जो जजमेंट देते थे, वर्डिक्ट मतलब उन लोग ने बोल दिया कि ऐसा ही होना चाहिए. आपके बीच में दो लड़ाई हुई है, जो झगड़ा हुआ है, उसको उन लोग बोल देते थे कि नहीं भाई आपको यही पनिशमेंट मिलेगी, आपको ऐसा ही करना है. तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया उसको बोलते हैं वर्डिक्ट. वर्डिक्ट हमेशा क्या होता है? जजमेंट, फाइनल. सो वो उनका क्या होता था? फाइनल होता था. दैट वॉज अनक्वेश्चनेबल. अनक्वेश्चनेबल मतलब एक बार आपके अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि आपको ये नहीं बाहर जाना है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो. दैट इज़ योर पेरेंट्स वर्डिक्ट. वो आप कुछ सोच समझ के आपको आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है. सो इन द सेम वे व्हेन द पंचायत पीपल, जब 5 लोग बड़े बैठते थे और अपने प्रॉब्लम्स गांव वाले लाते थे और उसका सॉल्यूशन देते थे, तो उन्होंने जो बोल दिया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्डिक्ट. और उसको कुछ चेंज नहीं होता था. दैट वाज नॉट क्वेश्चनेबल. मतलब उसके खिलाफ कोई जाता नहीं था. द पंचायती राज सिस्टम वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1992. कब असली में पंचायती राज वापस स्टार्ट हुआ? इन द ईयर 1992. हाँ, ब्रिटिशर लोग आए थे उसके पहले अपना पंचायती राज था. बट ब्रिटिशर को कोई पसंद नहीं था कि कोई गवर्नमेंट चलाए. उनको अपने ही आदमी चाहिए थे, इसलिए उन लोगों ने पंचायती राज बंद कर दी थी. बट इट स्टार्टेड अगेन इन विच ईयर? 1992 बाय द 73rd अमेंडमेंट. अमेंडमेंट मतलब जो चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में. हर साल कुछ ना कुछ, हर बार नए चेंजेस आते हैं, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स. विद द स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस. मतलब गांव तक हर एक सुविधा मिले, गांव वालों का भला हो, गांव वालों तक हर एक चीज़ों की फैसिलिटी हो, इसके लिए ये पंचायती राज को वापस इंट्रोड्यूस किया इन द 73rd अमेंडमेंट. मोर देन 70% इंडियंस लिव इन विलेजेस. यानी अपना इंडिया जो है ज़्यादा शहर नहीं है, ज़्यादा गांव है. और ज़्यादा करके लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रहना पसंद करते हैं. The Indians live in villages and the government has to be decentralized to give powers to the rural sector for the development of villages and a better administration. See, whenever anything happens in your village, every time we cannot call the Delhi government or we cannot call our minister from Delhi कि यहाँ पर ऐसा हुआ. There should be power should be decentralized. मतलब पावर ऊपर से नीचे आने चाहिए. ऊपर से नीचे का मतलब है गवर्नमेंट है मेन, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके अंदर है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके अंदर अपना है पंचायती राज. एवरी विलेज शुड हैव वन टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट, ताकि लोग अपने वहाँ पे विलेजर्स की भलाई हो सके, विलेज का कुछ अच्छा हो सके. दैट इज़ वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड. द मेन रोल ऑफ द पंचायत इज टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द विलेज. अफेयर्स ऑफ द विलेज मतलब विलेज के रोजमर्रा के काम, रोज के काम, रोड बनाना, पानी की सप्लाई करना, हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट करना, स्कूल्स बनाना, मार्केट अच्छे से बनाना, देन व्हाट वी से different other things to be done in the village. For example here, that is resolve conflicts. पहली बात तो किसी के कुछ झगड़े हो, कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, उसको मेंटेन पीस, कंस्ट्रक्ट रोड्स,
public buildings like what we say granaries or markets and so on, schools, wells, tanks, colleges, bridges, agricultural, irrigation facilities, agricultural activities, cattle, fisheries, rural health, sanitation मतलब cleanliness, sanitation मतलब hygiene, आपको तो अभी sanitation का मतलब पता चल गया होगा अच्छे से, हम सबको पता चल गया. एंड अदर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ मतलब गांव में सब एक्टिविटीज़ के लिए जो जिम्मेदार होती है वो है अपनी पंचायती राज. इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस कम्युनिटी सेंटर्स एंड प्रमोट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर इरीगेशन एंड फार्मिंग मतलब मेन काम गांव का फार्मिंग है तो उसके लिए वाटर सप्लाई करना, सीड सप्लाई करना, ये भी एक मेन काम है पंचायती राज का. एंड फॉर द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक मेला, मेला लगता है गाँव में, फेयर होते हैं, अलग अलग मेले लगते हैं, सो उसका भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी मतलब लोगों के मनोरंजन के भी कार्यक्रम होने चाहिए. जैसे अपने यहाँ पे थिएटर्स है, मॉल्स है, वैसे ही गाँव में ये मेले लगते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. विलेजेस में वहाँ पे मॉल्स वगैरह नहीं होते, सो देर वो जो फेयर लगता है, एग्जीबिशन जो मेला लगता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय दी गवर्नमेंट. इसलिए ये सब किन के काम है? पंचायत के काम है, पंचायती राज के काम है. Understood till here, children? See, now our come on the page number next, that is 243. See, info paper box एक बार देख लेते हैं. India is a poor because villages of India are poor. क्यों? अगर गांव में सब फैसिलिटी आ जाए तो नेचुरली इंडिया विल ऑल्सो बिकम वेरी डेवलप्ड. इंडिया विल बी रिच इफ द विलेजेस ऑफ इंडिया आर रिच. ये सब किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने लिए लिखा है. Panchayat should be given greater powers, for we want the villagers to have a greater measure of swaraj, self-government in their own village. मतलब अपने को बार बार कोई बड़े दिल्ली के गवर्नमेंट की राह नहीं देखनी पड़े, अपने गांव में ही इतना मस्त गवर्नमेंट हो, इतना अच्छे लोगों के पास सब फैसिलिटी हो और गवर्नमेंट इतनी मजबूत हो कि विलेज ऑटोमेटिक प्रॉस्पर करे. अगर प्रॉस्पर करेगा, विलेज अगर आगे बढ़ेगा तो नेचुरली आवर कंट्री विल ऑल्सो प्रॉस्पर. चिल्ड्रन, तो इसी कॉन्सेप्ट को जवाहरलाल नेहरू ने अपने को समझाया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज. इन इंडिया पंचायत राज नाउ फंक्शंस एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब सबसे नीचे ग्रास रूट लेवल पे, यानी सबसे नीचे किसका काम शुरू होता है? ग्राम पंचायत का. मतलब एट द एकदम विलेज लेवल. सो सबसे छोटा विलेज है, विलेज के ऊपर तालुका है, विलेज के ऊपर पहले तो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर तालुका मतलब उसके ऊपर है ज़िला, ज़िला के अंदर आती है सिटी. तो ऐसे करके सबसे जो लोवेस्ट लेवल पे है विलेज लेवल, वहाँ पर से क्या किसकी शुरुआत होती है? ग्राम पंचायत की शुरुआत होती है. इसलिए इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब जहाँ से अपना गवर्नमेंट शुरू होता है बेसिक, वो है अपना ग्राम पंचायत. द सिस्टम हैज़ 3 लेवल्स. चिल्ड्रन, पंचायती राज के 3 पार्ट्स देखो. ग्राम पंचायत कहाँ पर है? गवर्नमेंट, विलेज लेवल. ब्लॉक समिति और पंचायत ब्लॉक समिति वो है ब्लॉक लेवल पे. ब्लॉक मतलब तालुका. चिल्ड्रन, जहाँ 5-6 विलेज बनकर एक तालुका बनता है उसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल. वहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट है? पंचायत समिति, या तो हम लोग बोलते हैं उसको ब्लॉक समिति. एंड उसके ऊपर का जो लेवल है, ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है चिल्ड्रन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की. उसके ऊपर जो सारे विलेज को मिलाकर एक ज़िला बनता है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट बनती है, तो वहाँ पे कौन है? जिला परिषद. कौन से लेवल पे है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. सो पंचायत राज वर्क्स ऑन 3 लेवल्स. अगेन आई एम रिपीटिंग. एट द विलेज लेवल, जो सबसे बेसिक लेवल है, वहाँ पर है ग्राम पंचायत. उसके ऊपर है तालुका लेवल, यानी वहाँ पर है ब्लॉक लेवल पे है ब्लॉक समिति, पंचायत समिति. और सब ब्लॉक को मिलाकर बनता है एक डिस्ट्रिक्ट, जिला, हम लोग जिसको जिला बोलते हैं. तो उसमें कौन है? जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो ये लेसन में हम लोग विलेज लेवल के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे गांव के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें हम लोग तीनों की बात करेंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और मतलब ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो फर्स्ट वी बिगिन विथ व्हाट? विलेज लेवल. इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग ओनली टिल विलेज लेवल. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 वीडियो में हम लोग करेंगे इसके बाद वाले में न्याय पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला. सो दिस वी विल कंटिन्यू चिल्ड्रन इन द नेक्स्ट वीडियो. चिल्ड्रन, इन हियर आई विल स्टॉप. If the videos are small, no, then only you are enjoying, children. So that is why I will stop here, children. So in this video we have understood about the
फंक्शनिंग और द स्टार्टिंग ऑफ पंचायत राज. पंचायत राज क्यों बना, पंचायत का मतलब क्या है, पंचायत राज कैसे फॉर्म हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो कितने लेवल पे काम करता है चिल्ड्रन. सो आई विल स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द विलेज लेवल चिल्ड्रन. विलेज लेवल से स्टार्ट करेंगे.